Bismillahirrahmanirrahim. In chapter number 6, our today's lecture is about type of packing at arrangement of atoms in the crystal lattice. Now, what do we mean by the packing arrangement in the metals? In the metals, the atoms are considered as hard spherical balls of identical size. And there are two types of arrangement for the packing of atoms in the crystal lattice. It is square packing or hexagonal packing. Square packing is like this. In square packing, each atom is in contact with the four other atoms, so its coordination number is 4. Whereas in hexagonal close packing, each atom is in contact with the 6 other atoms in its layer, that is coordination number is 6. Now we can observe that in case of hexagonal close packing, the spaces or the voids between atoms are smaller or they are less as compared to those present between the atoms in the square packing. Therefore, we say that hexagonal close packing is more efficient, whereas the square packing is less efficient. Therefore, we'll call the hexagonal packing as the close packing and the square packing as the open packing. कहने का मतलब यह है कि मेटल के अंदर एटम्स हार्ड स्फेरिकल बाल्स की तरह के होते हैं जिनका साइज एक तरह से होता है। इनकी दो पॉसिबल अरेंजमेंट है लेटिस के अंदर। या तो हर एटम 4 अदर एटम के साथ जो है वो इन कांटेक्ट होगा, इसे हम स्क्वायर पैकिंग कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, या फिर हर एटम 6 एटम के साथ इन कांटेक्ट होगा, यानी इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। यहां पे हम दोनों केसेस को ऑब्जर्व करने के बाद कंक्लूड ये करते हैं कि हेक्सागोनल पैकिंग में एटम्स एक दूसरे के ज्यादा क्लोजर हैं एज कंपेयर टू दैट इन द स्क्वायर पैकिंग। इसलिए हेक्सागोनल पैकिंग को क्लोज पैकिंग कहा जाता है। इट इज मोर एफिशिएंट, whereas the square packing is known as the open packing in which coordination number is 4. Now in hexagonal close packing, जिसको अभी हमने जो है वो जस्ट अभी डिस्कस किया, इसके अभी देखा है, hexagonal close packing में क्या होता है? In hexagonal packing or in close packing, the metal atoms are like hard spherical balls and they are as closely packed as possible such that each atom is surrounded by 6 other atoms forming a layer having the empty spaces between them. These empty spaces are called voids. Let's label this layer as A. All the voids in the label A are identical. ये layer है, ये hexagonal जो है ये क्लोज हेक्सागोनल जो है या क्लोज पैकिंग है एटम की, जिसमें हर एक एटम 6 अदर एटम के साथ इन कांटेक्ट है। तो स्फेरिकल शेप की वजह से ये एटम्स तमाम वॉल्यूम ऑक्युपाई नहीं कर सकते, 100% ऑक्युपाई वॉल्यूम ऑक्युपाई नहीं करेंगे। देयर आर लेफ्ट एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन देम। these empty spaces are known as the voids. So voids are present between the atoms of the first layer, जिसको हमने लेबल किया है as layer A. Now what will be the second layer? ये अभी जो voids आप देख रहे हैं, these voids जो है they will be occupied by the atoms of the second layer. इन voids में जो एटम जब प्लेस होंगे तो वो सेकेंड लेयर बना देंगे, यानी voids in the layer A are occupied by the similar atom to form the layer B. That is, the atoms in the layer B reside in the voids present between the atoms in the layer A like this. ये जो है यहाँ पे
ये वाइट्स हैं, ये आपको रेड कलर में लेयर ए नजर आ रही है। उस रेड लेयर के दरमियान जो वाइड्स हैं, जो डिप्रेशंस हैं, वहां पे जो सेकंड लेयर के एटम रिजाइड करेंगे। तो फर्स्ट लेयर जिसको रेड कलर से शो किया है उसको लेयर ए से आप लेबल कर सकते हैं, और ग्रीन कलर से जिसको शो किया है इसको आप लेयर बी से लेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेटे अब आप ये देखिएगा कि लेयर ए में जो तमाम वाइड्स एक जैसे थे, लेकिन लेयर बी के एटम के दरमियान अब वाइड जो हैं ये टू टाइप्स के हैं। देयर आर प्रेजेंट टू टाइप ऑफ वाइड्स इन द लेयर बी। दे आर द टेट्राहेड्रल वाइड्स एंड सेकंड आर द ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। अब आप देखिए कि टेट्राहेड्रल वाइड्स क्या है और ऑक्टाहेड्रल वाइड्स क्या है। टेट्राहेड्रल वाइड्स वो हैं जो बी लेयर के दरमियान, बी लेयर के एटम के दरमियान मौजूद हैं, लेकिन इन वाइड्स के नीचे फर्स्ट लेयर के एटम्स मौजूद हैं। तो ऐसे वाइड्स जिनके नीचे फर्स्ट लेयर के एटम मौजूद हैं उन्हें हम टेट्राहेड्रल होल कहते हैं। जबकि बी लेयर के एटम्स के दरमियान वो वाइड्स जिनके नीचे ए लेयर के वाइड्स मौजूद हैं उन्हें हम octahedral voids कहते हैं। The two type of voids, they are tetrahedral voids and the octahedral voids. Tetrahedral void, फिर देख लीजिए कि tetrahedral voids are present above an atom in the first layer, that is in the layer A, जैसे आप देखा है कि एटम ए के ऊपर। This void is known as the tetrahedral void because it is surrounded by four atoms forming the tetrahedron, जिसकी वजह से इसको टेट्राहेड्रल void कहा जाता है। इस void को फोर एटम सराउंड करते हैं और वो एटम एक टेट्राहेड्रल शेप बनाते हैं। टेट्राहेड्रल मीन फोर साइडेड। ये आप देख लीजिए, ये मिसाल के तौर पे थ्री एटम्स हैं। इन थ्री एटम्स के दरमियान जो ये वाइड या डिप्रेशन नजर आ रही है आपको, अगर इसको एक फोर्थ एटम कवर करता है तो ये जो वाइड होगी, इस वाइड को फोर एटम सराउंड करते हैं। ये वाइड क्या होगी? दिस विल बी टेट्राहेड्रल वाइड। ये टेट्राहेड्रल वाइड जो है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये कहां पे मौजूद होगी, दिस विल बी प्रेजेंट बिटवीन, सॉरी, इट विल बी प्रेजेंट above the atoms of layer A। ये ए लेयर के एटम के अबव बी लेयर के एटम के दरमियान जो है ये मौजूद होगी। इसको एक दफा फिर देख लीजिए, दीज आर द थ्री एटम्स, और इनके अगर ये फोर्थ एटम इस वाइड को कवर करता है तो ये जो होल होगा, जो डिप्रेशन या वाइड होगी, इट विल बी नोन एज द टेट्राहेड्रल वाइड्स। अब ये टेट्राहेड्रल वाइड्स को एक दफा जो है वो फिर देख लीजिए, दीज आर द एटम्स इन द लेयर ए। अब इसमें तमाम वाइड जो हैं वो सिमिलर हैं, एक जैसे हैं। दे विल बी ऑक्युपाइड बाय द एटम्स टू फॉर्म द लेयर बी। ये बी एटम जो हैं दे आर ऑक्युपाइंग द वाइड्स which are present between the atoms of the layer A। तो इस तरह आप देखिएगा कि ये इस सेकेंड लेयर के एटम के दरमियान भी अब वाइड्स हैं वो प्रोड्यूस होना शुरू हो गए हैं। तो इनमें जो वाइड्स जो हैं वो वाइड्स जो कि ए लेयर के यानी फर्स्ट लेयर के एटम्स के ऊपर मौजूद हैं वो क्या हैं? दे आर द टेट्राहेड्रल वाइड्स। नाउ द नेक्स्ट आर द ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कौन से वाइड्स हैं? ये ऐसे वाइड्स हैं, ये सेकंड लेयर में मौजूद ऐसे वाइड हैं जो फर्स्ट लेयर में मौजूद एटम के वाइड्स के अबव मौजूद हैं। फर्स्ट लेयर में मौजूद वाइड
उसके ऊपर अगर सेकेंड लेयर का वाइड मौजूद होगा तो वो क्या होगा, दैट विल बी नोन एज द ऑक्टाहेड्रल वाइड। इसको ऑक्टाहेड्रल वाइड क्यों कहते हैं, बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय 3 एटम्स इन द बॉटम लेयर। ये इस वाइड के नीचे जो है वो बॉटम लेयर में भी 3 एटम्स होंगे and 3 atoms in the upper layer। और ये 6 एटम जो है वो क्या बनाते हैं, दिस फॉर्म एन ऑक्टाहेड्रॉन, एक 8 साइडेड शेप जो है वो बनाते हैं। दिस देयरफॉर इट इज नोन एज द ऑक्टाहेड्रल वाइड। ये आप देखिए कि these 3 atoms in the bottom layer, 3 atoms in the upper layer, और इनके दरमियान ये क्या है, दिस इज द ऑक्टाहेड्रल वाइड। तो इसको हम फर्दर भी एक एनिमेशन के जरिए देखते हैं कि दीज आर द एटम्स ऑफ द फर्स्ट लेयर, जिसको हम एटम्स ए से लेबल करते हैं। इनके दरमियान वाइड्स एक जैसे हैं। दे विल बी ऑक्युपाइड बाय द एटम्स ऑफ द सेकंड लेयर, जिसको बी से लेबल किया गया है। ये फर्स्ट लेयर में मौजूद वाइड्स को ऑक्युपाई कर रहे हैं, एंड इन दिस वे वाइड्स आर आल्सो बीइंग क्रिएटेड। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे वाइड जो है ये दो किस्म के हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो एटम ए के ऊपर मौजूद हैं, ए लेयर के एटम के ऊपर जो वाइड मौजूद हैं, उनको मैंने क्या कहा था अभी, टेट्राहेड्रल वाइड्स। लेकिन जो फर्स्ट लेयर के वाइड के ऊपर जो वाइड मौजूद हैं, ये क्या है, दे आर ऑक्टाहेड्रल वाइड, जिसको मैंने आप अभी बताया कि they are in contact with the 3 atoms in the bottom layer and 3 atoms in the upper layer। तो ये जो है ये 6 एटम एक ऑक्टाहेड्रल शेप बनाते हैं, जिसकी वजह से इसको ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कहा जाता है। ये तो होगी 2 लेयर्स। नाउ लेट्स सी व्हाट्स अबाउट द थर्ड लेयर। ये 2 लेयर हो गई कि फर्स्ट लेयर सिंपल जिसमें एक ही तरह के वाइड्स होते हैं, एंड सेकंड लेयर जिसमें अब 2 टाइप के वाइड्स होते हैं, दे आर the tetrahedral voids and the octahedral voids। अब इस सेकंड लेयर में मौजूद जो voids हैं, ये या तो tetrahedral voids ऑक्युपाई करेंगे या octahedral voids ऑक्युपाई करेंगे। इस तरह जो है वो 2 टाइप की 3 डायमेंशनल पैकिंग अरेंजमेंट जो है वो बनेगी। द फर्स्ट टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट इज नोन एज द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसको HCP से एब्रीविएट करते हैं, एंड द सेकंड टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग इज नोन एज द क्यूबिक क्लोज पैकिंग व्हिच इज एब्रीविएटेड एज CCP। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट डू वी मीन बाय द hexagonal close packing। If the atoms of the third layer occupy the tetrahedral voids present between the layers of the atoms between the atoms of layer B, then the atoms of third layer will be present just above the atoms of layer A। Yani that is the third layer will be identical to the first layer A। Such type of arrangement is known as the hexagonal close packing arrangement, or abbreviated HCP. It is also represented by ABAB pattern। What do we mean by this? These are the atoms of the first layer having identical voids, जैसे मैंने पहले बताया कि they will be occupied by the atoms of B layer। ये जो second layer के atoms हैं, they are occupying the voids to form the second layer। तो मैंने आपको ये भी बताया कि they are present 2 type of the voids। तो ये क्या है, the voids which are present just above the atoms of the first layer, they are the tetrahedral voids। अगर थर्ड लेयर, अब थर्ड लेयर अगर बनेगी तो वो सेकेंड लेयर के एटम के दरमियान मौजूद वाइड्स को कवर करके बनेगी। देन थर्ड लेयर के एटम कहाँ पे होंगे, दे विल बी रिसाइडिंग इन द वाइड प्रेजेंट बिटवीन द एटम्स ऑफ द सेकेंड लेयर। अब सेकेंड लेयर में तो 2 टाइप के वाइड्स हैं, जिसको अभी मैंने बताया कि दे आर टेट्राहेड्रल वाइड्स और ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। अगर तमाम टेट्राहेड्रल वाइड्स ऑक्युपाई होते हैं लाइक दिस, तो ऐसी सूरत में क्योंकि टेट्राहेड्रल वाइड जो हैं दे आर अबव द एटम्स ऑफ द फर्स्ट लेयर, तो इसलिए थर्ड लेयर के जो एटम्स हैं
वो भी वही पोजीशन ऑक्युपाई करेंगे जो फर्स्ट लेयर के एटम्स की है। इस तरह थर्ड लेयर जो होगी वो पोजीशन में फर्स्ट लेयर से आइडेंटिकल होगी। इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हर एटम जो है वो 6 अदर एटम के साथ इन कांटेक्ट है। 6 अदर एटम के साथ कैसे? सॉरी, 12 अदर एटम के साथ इन कांटेक्ट है। 6 in the same layer, 3 in the upper layer and 3 in the bottom layer। तो इस तरह कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा ये 12 है। इसको एक फिगर के जरिए देखते हैं। ये फिगर जो है ये आखिर में मौजूद है। इसको हम जरा देख लेते हैं अभी कि ये कैसे, ये देख लीजिएगा। ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, this atom, it is in contact with the 6 other atom in its own layer. It is in contact with the 3 atoms in the bottom layer and 3 atom in the upper layer. First and third layer they are identical to each other। तो इस तरह क्योंकि ये एटम 12 अदर एटम के साथ इन कांटेक्ट है, तो इस तरह इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12। तो हम वापस जो है वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पे जो है वो आते हैं। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ये हम स्टडी कर रहे थे कि ये जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो एटम जो टोटल अवेलेबल वॉल्यूम का 74% ऑक्युपाई करते हैं। 26% will be occupied by the whites, whereas 74% will be occupied by the atoms। इनकी एग्जांपल बेरिलियम मेटल में अरेंजमेंट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है, मैग्नीशियम में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, कैडमियम में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, कोबाल्ट में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और जिंक में भी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। Now the second type of close packing is known as the cubic close packing arrangement। Now if the atoms of the third layer occupy the octahedral voids present between the atoms of the layer B, then the atoms of the third layer will be present just above the voids of the layer A। So as a result of which the atoms of the third layer will be different from the atoms of the layer A। उनकी पोजीशन जो है वो एटम ए और एटम बी दोनों के लेयर से डिफरेंट होगी। However, the fourth layer will be similar to the first one। Such type of arrangement is known as the cubic close packing arrangement or CCP, and it is also represented by ABC pattern or ABC pattern etc। इसको अब जरा देखते हैं एक एनिमेशन के जरिए। दीज आर द एटम्स ऑफ द फर्स्ट लेयर, जिसको हम कह सकते हैं कि दे आर द लेयर ए। इट इज ऑक्युपाइड बाय द वाइड्स आर ऑक्युपाइड बाय द एटम फॉर्मिंग द सेकंड लेयर, जिसको हम जो है वो लेबल करते हैं द लेयर बी। ये लेयर बी बन गया। एटम्स आर ऑक्युपाइंग द वाइड्स प्रेजेंट बिटवीन द फर्स्ट लेयर। तो अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अगर ऑक्टाहेड्रल होल्स ऑक्युपाई करते हैं बाय द ऑक्युपाई होते हैं बाय द एटम्स ऑफ थर्ड लेयर, तो ऐसी सूरत में जो क्लोज पैकिंग बनती है वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। लेकिन अगर ऑक्टाहेड्रल होल्स ऑक्युपाई होते हैं, थर्ड लेयर के एटम जो हैं तमाम ये ऑक्टाहेड्रल होल्स ऑक्युपाई करते हैं, तो ऐसी सूरत में जो थर्ड लेयर के एटम की पोजीशन जो होगी वो कहाँ पे होगी? इन वाइट के ऊपर। और कहाँ से? वो ए लेयर से भी डिफरेंट होगी और बी लेयर से भी डिफरेंट होगी। जैसे आप ये देख रहे हैं, दिस इज द एटम फॉर्म ऑफ द सी लेयर विच इज ऑक्युपाइंग द ऑक्टाहेड्रल होल। तो इस तरह आप ये देखिए कि सी लेयर के जो एटम्स हैं वो फर्स्ट और सेकंड लेयर दोनों से जो है वो डिफरेंट पोजीशन ऑक्युपाई कर रहे हैं। सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज द क्यूबिक क्लोज पैकिंग।
तो जिस तरह हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में मैंने आपको बताया कि यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, that each atom is in contact with the 12 other atoms, 6 in the same layer, 3 in the upper layer and 3 in the bottom layer. Hence coordination number is 12. Here also volume occupied by atom in this arrangement is the 74% of the total volume, 26% volume is occupied by voids. और इस ये जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट होती है किस में होती है? इट इज प्रेजेंट इन द atoms of aluminium, copper, gold, lead, palladium, nickel, calcium, etc. Now let's see few differences between the hexagonal close packing and the cubic close packing. Now, hexagonal close packing is the type of close packing of atoms in the crystal lattice, in which third layer of atom is identical to the first layer. Whereas in cubic close packing is the type of close packing of the atoms in the crystal lattice, in which the fourth layer of atom is identical to the first one. HCP involve the filling of atom in the tetrahedral voids. CCP involve the filling of atoms in the octahedral voids. HCP is represented by A, B, A, B, A layer, then B layer, then again A layer similar to the first one, third similar to the first one, fourth to the second one, etc. Whereas CCP is represented by A, B, C pattern, A layer, then B layer, C layer. Again, fourth layer will be similar to the first one, fifth layer to the second, and sixth layer to the third one. और ये एक डायग्राम जो है ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग के दरमियान जो है वो पोजीशन डिफरेंस को जो है वो वाज़ेह करती है. दिस इज द फर्स्ट लेयर ए, सेकंड लेयर एंड द थर्ड लेयर. जहाँ पे आप देख रहे हैं कि फर्स्ट और थर्ड लेयर दे आर सिमिलर. First layer A in cubic close packing, second and third. All the three layers, first, second, third, they are different from each other. तो इस टॉपिक में जो हमने स्टडी किया है इसमें एक छोटे से क्वेश्चन जो है वो यूं आपसे किए जा सकते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय द क्लोज पैकिंग ऑफ द एटम्स, व्हाट आर द टेट्राहेड्रल voids एंड द octahedral voids एंड डिफरेंशिएट बिटवीन HCP एंड CCP. एक और वीडियो भी जो इसके साथ ही मैं जो है वो अपलोड कर रहा हूँ उसमें जो एक बॉल्स के जरिए मैं डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा कि HCP क्या होता है और CCP क्या होता है. Thank you, my dear students.